चलो शुरू करते हैं गुड फिर। इवनिंग सर। Yes, good evening. तो लास्ट लेक्चर में आपने लाइसेंस, आई मीन आई स्टार्टेड विद द सिक्योरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल. So in the security, I mean we see what the basic overview of the security, and we understood few of the basic concepts. उसके बाद में हमने जो स्टार्ट किया था वो था लाइसेंस. And then I told you one thing that license broadly ना दो कैटेगरीज के होते हैं, इंटरनल लाइसेंसेस एंड दी एक्सटर्नल लाइसेंसेस. तो हमने ये देखा कि इंटरनल लाइसेंसेस क्या होते हैं या फिर इंटरनल यूजर्स क्या होता है. एंड एज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल यूजर या फिर एक्सटर्नल लाइसेंस, आई आई हैव टेकन टू एग्जांपल्स. एक तो आपका चैटर लाइसेंस जो होता है चैटर यूजर का, और दूसरा वाज द कम्युनिटी. तो वहाँ क्योंकि बात निकली थी कम्युनिटी की, तो एक थोड़ा सा हमने आउट ऑफ द बॉक्स फीचर जाके जो समझा वो ये कि हाउ टू क्रिएट द कम्युनिटी, और कम्युनिटी बेसिकली क्या होता है, and how you can create your own kind of web portals, your own websites inside the Salesforce. कैसे तो थोड़ा सा एक आपको एक ओवरव्यू मिला अब इस चीज का कि what are the different types of licenses, community क्या होती है, chatters क्या होते हैं, chatter user क्या होता है, external license, internal license, ये सारी चीजें. ठीक है. So as a part of discussion, as a part of discussion, I have showed you one diagram. एक सेकेंड ना, मैं उसको फिर से निकालता हूँ. So yes, this. I mean, I am about to take the profile, लेकिन मैं थोड़ा सा एक revision देना चाहता था मैं आप लोगों को. देखिए, we have discussed this, we discussed this diagram. Whenever we wanted to create the user, inside the Salesforce, as an administrator, we have this facility. We can create some of the users inside the Salesforce. So whenever we wanted to create the user inside, inside the org, two things are mandatory. First is your license. The license should be allotted to him, and one license is for one user. One license is for one user. The second thing, what was mandatory, is the profile. By today, we are going to discuss with the profile. Third thing was the role, but assigning a role is something which is optional. So at the time of creation of the user, we can either assign him a role even after once the user has been created. So afterwards also, like, we can assign the role. But two things which are mandatory at the time of creation itself is we should assign the license and we should assign the profiles, right? So in the last lecture, we have discussed about the license. Let's now discuss about the profile. The second thing which is mandatory at the time of creation is profile. Now let me show you one diagram. Let me show you one diagram for this. देखिए, where does actually profiles stand for? Profiles कहाँ stand करती है, ठीक है? Now let's take this as a scenario. See, if you remember, I mean, in the last lecture, I have also showed you the way to see how many licenses are we are having. आपको अगर ये देखना है कि how many licenses we are having, how many of them has been consumed, and how many of them has been remaining with us. So if you wanted to see this, तो आपको कहाँ जाना चाहिए कि we should go to first of all the setup and the administrator. और आप कंपनी प्रोफाइल्स में जाके कंपनी इंफॉर्मेशन को क्लिक करें, ठीक है. नाउ इनसाइड द कंपनी इंफॉर्मेशन, इफ यू स्क्रॉल इट डाउन, तो आपको एक सेक्शन नजर आता है यूजर लाइसेंसेस के नाम से. यहाँ पे आपको सारे लाइसेंसेस नजर आते हैं. इसको पहले तो आप शो पूरा कर दें एक बार. शो दैट मीन्स कि आप इस लिस्ट को पूरा एक्सपैंड कर लीजिए, एंड देन दीज आर द नंबर ऑफ द लाइसेंसेस दैट आर अवेलेबल विद अस, ठीक है. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास में सेल्सफोर्स के इस पर्टिकुलर डेवलपर एडिशन में वी ओनली गेट द 2 सेल्सफोर्स लाइसेंसेस, और उसमें से भी ना एक कंज्यूम हो चुका है. दिस इज फॉर आवर्स. ये जो हमने अपना आईडी क्रिएट किया और जो हमारा यूजर क्रिएट हुआ, तो उसको ये लाइसेंस दिया जा चुका है. एंड वी ओनली हैव लेफ्ट विद अस, वी ओनली लेफ्ट विद द वन लाइसेंस. उसके अलावा अगर मैं प्लेटफॉर्म लाइसेंस देखूं, so I have 3 platform licenses being granted, और एक भी कंज्यूम नहीं हुआ. That means I can now create 3 platform users also, ठीक है. So now see, now let's talk about the Salesforce license. तो अगर मैंने आपको उस वक्त ये बताया था, अगर आपको याद हो, तो हमने आपको ये कहा था कि देखिए, the most powerful license inside all these is the Salesforce license. Why? Because if you allot this license to someone, that becomes the Salesforce administrator. With this license, with the Salesforce license, what he can do. तो हमने इस पर डिस्कशन किया है कि Salesforce license is sometimes called as full copy license. Sometimes it is called as full copy license, या फिर standard license also. Now, if someone is having this license, it actually grants the access on every feature
every feature inside the organization. Now this means, now this person who is holding this license, the Salesforce license, he is a second system administrator. That means he can access every standard and every custom functionalities. Like he can access the standard and the custom your applications. He can access the standard and custom objects. He can access the standard and the custom fields, whatever. So this person can access everything. Why? Because he's having the Salesforce license. Okay. So out of all these licenses, what we are seeing over here right now. So out of all these licenses, Salesforce license is the most powerful and the most biggest license that you can give to someone. You know, this is the most powerful license that we can give it to someone. Salesforce license is the most powerful license, and we only have two licenses. Out of that, actually one is consumed. Right now, I'm having only one license. Now, let me come to where this profile stands, and अब हम profiles के ऊपर आते हैं. So, now see, for example, at the time of user, at the time of user creation, let's take this as an example. कि मान के चलिए कि मेरे पास, let me discuss this as an example. कि मान के चलिए कि I was having 5 Salesforce licenses. Let's take this as an assumption. कि at the beginning itself I was having 5 Salesforce licenses. ऐसा just एक assumption है आपको समझाने के. So I was initially having 5 different Salesforce licenses. So what I have done is that all I created 5 users. I created user 1, user 2, 3, 4, and 5. Okay, I created 5 users and I have allotted every one of these 5 users is having what? They all are having Salesforce licenses. Okay, they all are having Salesforce licenses. User 1, user 2, user 3, 4, and 5. All of them is having Salesforce licenses. So all of them is having Salesforce license, right? Now this means these all users are the defaults, are not default. These all 5 users. They, likewise your system admin, likewise the system admin, they can access every features. Why? Because they're having the Salesforce license. They can access every application. They can access every tab, every object, fields, features, whatever. Because they are having this Salesforce license, है ना? तो यही तो promise है Salesforce license का कि whenever you give this license to someone, so that person can access everything. He can access the standard functionalities. He can even access even the custom functionalities. Everything is accessible to him. Okay, this is what the Salesforce license promises. Okay, तो अभी हमने क्या किया कि we have created this 5 users and every one of them is holding this Salesforce license. चलो, तो अब हमें ये समझ में आ चुका है कि भाई इन पांचों के पास में Salesforce license है and they can do whatever they want, right? But अब मुझे यहाँ पे ना थोड़ा सा restriction impose करना. Okay, I wanted to put some sort of restrictions. What kind of restrictions? देखिए, what I want that user 1 and user 2. I just want that user 1 and user 2 should only use every standard functionality, but they cannot use them. They could use the standard functionalities like the standard object, application, whatever, but they shouldn't use the custom functionality. That is what I want. अभी देखा जाए तो भाई दोनों के पास में ना Salesforce license, they can access everything. But here I wanted to have some sort of restriction. I wanted to put some restriction. What I want, कि भाई user 1 or user 2 should only access the standard, they shouldn't access the custom. On the other hand, user 3 and user 4, for this the policy is that, out of the standard and the custom object, what I want that, these user 3 and the number 4, these two users should access the custom, but they shouldn't access the standard. And for user 5, I wanted him to make these like the system admin. I wanted him that he should access the standard. He should even access the custom functionalities also. Now this is what I want. ठीक है, ये हमारा use case है. Try to understand the use case. Try to understand the requirement. क्या requirement है कि out of all these users, now I wanted to put some sort of specialization. I wanted to put some sort of restrictions on them. भाई हम ये चाहते हैं कि user 1 और user 2 they could only access the standard. They could only access the standard function. The user 3 and 4 could access only the custom functions. They could only access the custom functionalities. But I want that user number 5, sorry, he could access everything. Yes, user number 5, let's make him the another system admin so that he could access the standard and the custom functionality. This is what we want, right? अब अगर मैं लाइसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, सी लाइसेंस क्या है, दोनों सबके पास में Salesforce है. दैट मीन्स कि लाइसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉसिबल.
बिकॉज लाइसेंस इज गोइंग टू गारंटेड कि भैया इन सबको सब चीज मिलने वाली। वाई? बिकॉज ऑल ऑफ देम इज हैविंग द सेम लाइसेंस। सबके पास में एक ही लाइसेंस है, वो है सेल्स फोर्स। और सेल्स फोर्स लाइसेंस होने का मतलब ही ये होता है कि आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। तो अब ये रिस्ट्रिक्शन कैसे पुट अप करोगे, ये फंक्शनैलिटी कैसे अचीव करोगे आप? सबको सब कुछ नहीं दिया जाता है। सब एक ऑर्गेनाइजेशन में है, वैसे भी देखा जाए तो सबको सारी चीजें एक्सेस नहीं रहती है। ये बड़ी कॉमन सी बात है कि अगर आप जिस पोजीशन पे जाके काम करते हो और फिर जितना आपका रिक्वायर्ड, इवन जब आप प्रोजेक्ट पे भी अलॉट होते हो ना, तो प्रोजेक्ट के ऊपर भी आपको सारी मॉड्यूल्स का एक्सेस नहीं मिलता है। आपको केवल वही एक्सेस मिलता है जिस पर आपने काम करना है। तो जब हमें एक्सेस को सीमित करनी है, एक्सेस पर रिस्ट्रिक्शन देना है, तो हम क्या करेंगे? सेल्सफोर्स में वो कौन सा ऐसा फीचर है जिसके थ्रू आप यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? अब वो है प्रोफाइल। वो क्या है प्रोफाइल? With the help of profile, what you can do, you can put some sort of restrictions. You can degrade the user. अब देखो एक कॉमन कंफ्यूजन होता है प्रोफाइल्स के बारे में। प्रोफाइल अपग्रेड नहीं करती कभी यूजर। प्रोफाइल कभी भी अपग्रेड नहीं करती है। प्रोफाइल्स एक्चुअली इज यूज्ड टू पुट सम सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन। मान के चलिए कि अगर आपके पास में फॉर एग्जांपल इफ विद द सेल्सफोर्स लाइसेंस, सेल्सफोर्स लाइसेंस की मदद से यू वर हैविंग 100 एक्सेस, 100 फंक्शनैलिटी एक्सेस। अब 100 चीजों का एक्सेस कर सकते थे, तो प्रोफाइल उसको 101 नहीं कर सकता। प्रोफाइल उल्टा 100 का 80 कर देगा, 100 का 50 कर देगा, 100 का 100 रहने देगा। मतलब जितनी चीजें आपको अवेलेबल है उसमें से आपको प्रोफाइल कुछ बढ़ा के नहीं दे सकता। प्रोफाइल हमेशा या तो घटा के दे सकता है, या उसमें से जो चीजें आपको या पूरी चीजें जो अवेलेबल है, जैसे कि यूजर नंबर 5 पर क्या है, सारी चीजें मिलना चाहिए, स्टैंडर्ड कस्टम। तो अगर लाइसेंस ने आपको 100 चीजें दी है, तो प्रोफाइल सिर्फ उन पे रिस्ट्रिक्शन पुट कर सकता है, ये चीज मान लो। तो एक कॉमन क्वेश्चन होता है इंटरव्यू पे, बहुत ध्यान से सुनो इस चीज को, और बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, और ज्यादा कोई टफ नहीं है, सीधा सीधा, मतलब जिस एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। मान के चलिए कोई ऐसी चीज है जो आपको लाइसेंस ने नहीं दिया है। अभी मैं सेल्स फोर्स लाइसेंस की बात कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं सेल्स फोर्स लाइसेंस की बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मान के चलिए कि मैंने 5 यूजर क्रिएट करे हैं जिनको मैंने प्लेटफॉर्म यूजर किया, तो आप सोचिए प्लेटफॉर्म यूजर पे वैसे तो उनको सारी कस्टम फंक्शनैलिटीज मिल जाएगा, लेकिन सारे स्टैंडर्ड नहीं। स्टैंडर्ड में सिर्फ कुछ चीजें, जैसे कि मान के चलिए अकाउंट, कॉन्टैक्ट, डॉक्यूमेंट, टास्क और इवेंट। क्या ऐसा कोई यूजर जिसके पास प्लेटफॉर्म लाइसेंस है, क्या वो अपॉर्चुनिटी एक्सेस कर सकता है? नहीं, क्योंकि वो इस लिस्ट में है नहीं। क्या ऐसा कोई यूजर जिसके पास प्लेटफॉर्म लाइसेंस है वो कैंपेन एक्सेस कर सकता है? नहीं। क्या वो केस एक्सेस कर सकता है? नहीं। ठीक है, तो अब थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल को ट्विस्ट करता हूँ और मैं ऐसा कहता हूँ आपसे कि मान के चलिए कि मेरे पास 5 प्लेटफॉर्म लाइसेंस, ये 5 यूजर को। अब मैं प्रोफाइल की मदद से क्या मैं उसको अपॉर्चुनिटी एक्सेस करवा सकता हूँ? तो आंसर है नहीं। देखिए जो, एक सेकेंड, हम्म तो मैं ये डिस्कस कर रहा था आप लोगों से कि मान के चलिए कि मैंने प्लेटफॉर्म लाइसेंस दिए हैं यूजर को, और हम ये जानते हैं कि प्लेटफॉर्म लाइसेंस के बेसिस पे ही कैन एक्सेस ओनली 5 स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, ज्यादा नहीं। कौन कौन से? अकाउंट, कॉन्टैक्ट, डॉक्यूमेंट, टास्क एंड इवेंट, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, जो कि जनरली पूछा जाता है ये क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अलॉटेड a platform license to a user, now he cannot access the opportunity, या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट जैसे कि कैंपेन या केसेस, है ना? Now they ask you this as a question कि if I make some changes in the profile, can I allow can I give him the access of the opportunity? If I make some changes in the profile, can we give him the access on the case? तो आंसर क्या है? नहीं। देखिए सुनिए, जो प्लेटफॉर्म, सॉरी, जो लाइसेंस ने दिया है उस पर आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते, लेकिन जो लाइसेंस में नहीं है ना इंक्लूडेड, वो आप नहीं दे सकते। सो प्रोफाइल कभी भी यूजर को अपग्रेड नहीं कर रहा है, प्रोफाइल एक्चुअली यूजर को डिग्रेड कर रहा है, नीचे ला रहा है। अगर लाइसेंस ने आपको 10 चीजें दी है, तो प्रोफाइल उन 10 में से 10 देनी है, 10 में से 5 देनी है, 10 में से 8 देनी, इस पर डिस्कशन करेगा। प्रोफाइल से आप ये नहीं कर सकते कि अगर 10 चीजें मिली है तो 11वीं चीज में लाके प्रोफाइल से दे दूं, वो पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो ये चीज को समझो आप, मैं बहुत क्लियर कट समझा रहा हूँ, आप बहुत आसानी से समझने वाली बात है ये। जो लाइसेंस ने दिया है उसके ऊपर सारी चीजें, लाइक पहली बात कि आपको कितनी चीजें मिलेंगी, ये कौन डिसाइड करेगा? लाइसेंस, प्रोफाइल नहीं।
प्रोफाइल आपको ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपको कितनी फैसिलिटीज मिलेगी। ये कौन बताएगा? लाइसेंस बताएगा। अब देखिए, लाइसेंस ने जितनी भी चीजें दिया, जैसे सेल्सफोर्स लाइसेंस ने क्या दिया? सब कुछ दे दिया। सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, सारे कस्टम ऑब्जेक्ट, सारी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, सारी कस्टम एप्लीकेशन, सारी स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी, सारी कस्टम फंक्शनैलिटी। अब इसमें से ये सारी चीजें आपको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? किसी यूजर को कितनी चीजें मिलनी चाहिए, किसी यूजर को कितनी चीजें मिलनी चाहिए, कम करके मिलनी चाहिए, तो वो कौन डिसाइड करेगा? प्रोफाइल। लेकिन जो उसके अलावा है, मतलब प्रोफाइल जो जो लाइसेंस में नहीं है, ठीक है, वो आप प्रोफाइल के थ्रू अलॉट नहीं कर सकते, ये जान। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन सा कंफ्यूजन होता है सभी लोगों में, इसलिए मैं बिल्कुल साफ साफ शब्दों में सबको समझा रहा हूँ कि जो लाइसेंस ने दिया है, या तो उतना का उतना दे सकते हैं आप प्रोफाइल के थ्रू, या उससे कम दे सकते हैं। जैसे लाइसेंस ने आपको सारी चीजें दे दी, सारी स्टैंडर्ड, सारी कस्टम, तो आप चाहें तो सिर्फ स्टैंडर्ड दे दीजिए कम करके, है ना? तो यहाँ पर क्या कम हो गया? कस्टम कम हो गया। सिर्फ कस्टम दे दीजिए, क्या कम हो गया? स्टैंडर्ड कम हो गया। या जितनी है उतनी की उतनी दे दीजिए, सारी स्टैंडर्ड, सारी कस्टम, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं दे सकते आप, कुछ बढ़ा के नहीं दे सकते। ये है प्रोफाइल। तो प्रोफाइल के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि किस यूजर को कितनी चीजें मिलनी चाहिए। ठीक है, अब ये मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया आपको, एक सेकेंड। एक्चुअली प्रोफाइल के ऊपर मैं पूरा एक लेक्चर लेने वाला हूँ अलग से। ये प्रोफाइल बहुत बड़ा है। यहाँ तो मैंने सिर्फ आपको ये इंट्रोड्यूस करने के लिए बताया कि देखिए, लाइसेंस और यूजर के बीच में प्रोफाइल आता है। जितनी फैसिलिटीज यहाँ से आ रही है, जितनी फैसिलिटीज आ रही है यहाँ से, उनमें से कितनी फैसिलिटीज आगे जाएंगी, वो कौन डिसाइड कर रहा है? ये गेटवे है आपका। ये कौन सा गेटवे है? प्रोफाइल। तो प्रोफाइल डिसाइड करेगा कि कितनी चीजें आगे जाएंगी, कितनी चीजें आगे जाएंगी, और कौन सी आके रुक जाएंगी, कौन सी आके रुक जाएंगी। समझ रहे हो? ये है आपका प्रोफाइल। तो प्रोफाइल कहाँ स्टैंड करता है? प्रोफाइल स्टैंड करता है इन बिटवीन लाइसेंसेस एंड द यूजर्स। प्रोफाइल कहाँ स्टैंड करता है? प्रोफाइल स्टैंड करता है इन बिटवीन लाइसेंस एंड द यूजर। ये बहुत सिंपल सी चीज है, आप इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। बहुत ज्यादा चीजें दिमाग में रखिए मत। मैं जिस तरह से सिंपल चीजें करके आपको समझा रहा हूँ, मुझे बस उतना ही ध्यान रखो आप। वैसे भी प्रोफाइल्स पता है आपको, मैं डिटेल से समझाने वाला हूँ। ठीक है, अभी इस मोमेंट पे आपको सबसे जरूरी चीज जो जाननी थी वो ये थी कि लाइसेंस की दी हुई चीजों पर रिस्ट्रिक्शन लगाने का काम प्रोफाइल का। प्रोफाइल अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं दे सकता। प्रोफाइल से रिस्ट्रिक्शन लगा के आपको मिली हुई फैसिलिटीज को कम कर सकता है। प्रोफाइल लाइसेंस से ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। हाँ, लाइसेंस ने 10 चीजें दिया है, अभी मैंने आपको 5 दिया, तो बाद में मैं प्रोफाइल में चेंजेस करके 6 कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो लाइसेंस ने दी हुई 10 चीजों के अंदर है। 7 कर सकता हूँ, ये मैं अगर मैं इस वे से बोलूँ तो हाँ मैं बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं 10 की 11 नहीं कर सकता। समझ गए आप? 10 की 11 नहीं कर सकता। तो प्रोफाइल अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकता। प्रोफाइल सिर्फ उन चीजों पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है या फिर प्रोवाइड कर सकता है जो कि लाइसेंस ने दी। सबसे बड़ी चीज कौन है? लाइसेंस। और लाइसेंस से कितनी चीज आगे बढ़ेंगी वो डिसाइड करता है प्रोफाइल। तो प्रोफाइल कहाँ स्टैंड करता है? प्रोफाइल स्टैंड करता है इन द मिडल ऑफ योर लाइसेंस है। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट की टर्म से हम बात करें, देखिए सेल्स फोर्स में यूजर्स का डेटा स्टोर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ही है यूजर ऑब्जेक्ट। प्रोफाइल्स का डेटा स्टोर करने के लिए भी एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का नाम है प्रोफाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और लाइसेंसेस का रिकॉर्ड, लाइसेंसेस के जो रिकॉर्ड है या फिर लाइसेंसेस स्टोर करने के लिए जो ऑब्जेक्ट यूज होता है उसका नाम यूजर लाइसेंस ऑब्जेक्ट। तो सेल्सफोर्स में 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यूजर लाइसेंस ऑब्जेक्ट में आपकी सारे लाइसेंसेस रिलेटेड आपको जो भी है वो वहां मिल जाएगा। प्रोफाइल्स रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोफाइल ऑब्जेक्ट में मिलेगी, और यूजर्स रिलेटेड जो भी यूजर क्रिएटेड है वो सारी ऑब्जेक्ट, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है, वो सारा रिकॉर्ड जो है कहाँ मिलेगा? यूजर ऑब्जेक्ट। ये 3 ऑब्जेक्ट्स हुआ करता है। ठीक है, ये था आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि प्रोफाइल एक्चुअली होती क्या है। वैसे हम प्रोफाइल पे पूरा लेक्चर आखिरी, सबसे आखिरी में जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो प्रोफाइल ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते। सो अब एक प्रोफाइल क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब टाइप्स ऑफ प्रोफाइल के ऊपर चलते हैं हम लोग। देखिए, एक चीज को समझिए आप। प्रोफाइल और लाइसेंस के बीच जो रिलेशनशिप है वो है 1 to। और या फिर मुझे ऐसा कहना चाहिए कि, एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ।
एडमिनिस्ट्रेटर मेनू में जाइए, मैनेज यूजर्स को एक्सपैंड करें। यहाँ आपको यूजर, रोज, परमिशन सेट सब कुछ मिल जाएगा, पब्लिक ग्रुप्स और प्रोफाइल्स। अगर आपको प्रोफाइल्स की इंफॉर्मेशन चेक करनी है, ठीक है, तो आप प्रोफाइल्स यहाँ से कुछ दिखाना चाहते हैं। देखिए बहुत अलग अलग, जैसे बहुत अलग अलग तरह के लाइसेंसेस हैं आपके पास, राइट। उसी तरह से बहुत अलग अलग तरह की प्रोफाइल्स भी होती हैं। दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ द प्रोफाइल, ये सारी प्रोफाइल्स हैं, ठीक है। ये सारी क्या है, प्रोफाइल्स। अच्छा, प्रोफाइल ये सारी कौन सी हैं, दीज आर द स्टैंडर्ड। कैन वी क्रिएट अवर ओन कस्टम प्रोफाइल, हाँ बिल्कुल सही। विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू बटन वी कैन क्रिएट अवर ओन कस्टम प्रोफाइल, ठीक है। जो हम क्रिएट करेंगे वो क्या कहलाएगी, कस्टम प्रोफाइल। फिलहाल नहीं किया, फिलहाल हमने कोई भी प्रोफाइल ऐसी नहीं क्रिएट किया कस्टम। जो भी हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर आ जाएगा, और उसके सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको सेल्सफोर्स ने एक कस्टम प्रोफाइल जो है ये क्रिएट करके दिया हुआ है। तो आप जितनी भी कस्टम प्रोफाइल क्रिएट करेंगे उसके आगे जो है ये कस्टम का जो चेक बॉक्स है, कस्टम सेल, तो ये कुछ ऐसी प्रोफाइल्स है जो सेल्सफोर्स ने आपको दिया हुआ है, ठीक है। हम जितनी भी कस्टम प्रोफाइल क्रिएट करेंगे अभी, तो उनके आगे कस्टम का चेक बॉक्स क्लिक हो जाएगा। और जिनके आगे ये चेक बॉक्स क्लिक नहीं है, बट ऑब्वियस ये सारी कौन सी फाइल्स हैं, ये सारी आपकी स्टैंडर्ड फाइल। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए अगर आप कस्टम प्रोफाइल की बात करें तो कस्टम प्रोफाइल को आप एडिट कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं, इवन आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन आप किसी भी स्टैंडर्ड प्रोफाइल को सिर्फ एडिट कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं, आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये काफी पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप याद करें, जब हमने एप्लीकेशन बनाया था सबसे पहला, ये जो आपने अलाइन टैलेंट एक्विजिशन बनाया, तब भी हमने ये बात निकाली थी कि ये सारे आपके सेल्स सर्विस मार्केटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है, राइट। तो आप इनको डिलीट नहीं कर सकते। आप, हाँ, अगर आपने जो बनाया मर्क या टैलेंट, तो आप इसको डिलीट कर सकते। ये पहली बात है जब आपने ये बात हमसे सुनी, जब मैंने आपको बताया था। सेकेंड टाइम तब ये डिस्कशन हुआ था जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, तो तब भी हमने आपको ये बात बताई कि देखिए जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, जैसे कि अकाउंट, लीड, कॉन्टैक्ट, ये सब चीजें, तो ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो पहले से मौजूद थे और ये सारे स्टैंडर्ड हैं, तो ये आप इनको डिलीट नहीं कर सकते। आप उनको एडिट कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक सर्टेन लेवल तक है और उसके आगे नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन फिर आपने जो क्रिएट किया, आई मीन यू क्रिएटेड दिस हायरिंग मैनेजर पोजीशन कैंडिडेट, तो दीस वर सम कस्टम ऑब्जेक्ट दैट वी क्रिएटेड, तो हम इनके साथ क्या कर सकते हैं भाई, हम इनको एडिट भी कर सकते हैं, पूरी तरह से एडिट कर सकते हैं ना। आप तो सर्टेन लेवल नहीं, वी कैन एडिट देम, आप जितना चाहे उतना, एंड वी कैन डिलीट देम, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो कस्टम प्रोफाइल्स ही डिलीट हो सकती है, स्टैंडर्ड प्रोफाइल कभी डिलीट नहीं होती, ठीक है। और अब प्रोफाइल्स कितनी है, तो प्रोफाइल यहाँ पे बहुत सारी है, प्रोफाइल यहाँ पे बहुत सारी है, ठीक है। आप देख सकते हैं काफी काफी सारी प्रोफाइल्स है यहाँ पे। एक बात जो आप नोटिस करें यहाँ पे, ये कि फॉर एवरी प्रोफाइल देयर इज अ लाइसेंस, फॉर एवरी प्रोफाइल देयर इज अ फिक्स्ड लाइसेंस, फॉर एवरी प्रोफाइल देयर इज अ फिक्स्ड लाइसेंस। हर प्रोफाइल के लिए एक लाइसेंस फिक्स्ड है, जो कि कभी चेंज। अगर एनालिटिक क्लाउड इंटीग्रेशन यूजर नाम की प्रोफाइल है, तो उसके साथ लगने वाला लाइसेंस कौन सा, ये। अगर चैटर फ्री यूजर एक प्रोफाइल है, तो उसके साथ कौन सा लाइसेंस लगता है, चैटर फ्री। आप चैटर फ्री के अलावा कोई दूसरा लाइसेंस नहीं दे सकते। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर अगर ये एक प्रोफाइल है, तो इस प्रोफाइल, अगर मैं इस प्रोफाइल पे यूजर क्रिएट करता हूँ, तो इस प्रोफाइल पे कौन सी लाइसेंस लगता है, दूसरा कोई लाइसेंस आप नहीं। मतलब अगर मैं इसको एक जनरल एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा, तो मैं ये कहूंगा, देखिए व्हीकल को आप प्रोफाइल समझिए, जैसे कि कार, इसको एक प्रोफाइल मानिए, ठीक है। जैसे कि बस, या कार, बस, या फिर आपकी एक्टिवा, या फिर दूसरी कोई भी गाड़ी, तो इसको आप प्रोफाइल मान के चलिए, ठीक है। तो कैसा है, हर एक गाड़ी का, हर एक प्रोफाइल को चलाने का अपना अलग लाइसेंस है। आप कार के लाइसेंस से कार ही चला सकते हैं, टू व्हीलर भी नहीं चला सकते, आपको उसके लिए अलग लाइसेंस चाहिए। टू व्हीलर के लाइसेंस पे आप बस नहीं चला सकते, बस के लाइसेंस पे आप ट्रक नहीं चला सकते, बराबर है ना। तो आप प्रोफाइल को क्या समझे कि ये एक व्हीकल है और इसको चलाने का एक लाइसेंस है, और वो फिक्स्ड है कि अगर ये मेरी प्रोफाइल है, अगर ये मेरा व्हीकल है, तो इसके लिए यही लाइसेंस लगेगा, दूसरा लाइसेंस नहीं लग सकता, राइट। तो प्रोफाइल और लाइसेंस के बीच की जो रिलेशनशिप है ना, वो है 1 to 1। फॉर एवरी प्रोफाइल देयर इज अ फिक्स सेट ऑफ लाइसेंस, फिक्स्ड यानी फिक्स्ड, वो बदल नहीं सकता। ये पहली बात है जो आपको नोट करनी है, ठीक है। नोट करनी है, नोट इसलिए करनी है क्योंकि आप लोग की
मेमोरी बड़ी शॉर्ट है। तो आप लोग नोट करिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, याद रखो। सिक्योरिटी ये वो टॉपिक है जो एडमिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ कहने जाने वाली हर बात जरूरी है। और यहाँ बहुत जरूरी कि आप हर चीज को समझें, हर चीज बारीक बारीक बातें। मैं कोई बात नहीं छुपा रहा हूँ आपसे, ठीक है, हर एक चीज बता रहा हूँ। सारी चीजें समझना है, लिखना है, ताकि हमको अच्छे से याद रहे। तो हर प्रोफाइल के साथ एक लाइसेंस फिक्स्ड होता है और वो बदला नहीं जा सकता, ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, ये जितनी भी ये लिखा हुआ है सब कुछ, हाँ, जो मैं बता रहा हूँ ना, डोंट वरी, ये सब लिखा हुआ है। और नहीं भी लिखा है तो कोई बात नहीं, लेक्चर तो रिकॉर्ड हो ही रहा है ना, लेक्चर तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोफाइल्स के दो टाइप होते हैं, स्टैंडर्ड प्रोफाइल, कस्टम प्रोफाइल, ठीक है। अभी कस्टम प्रोफाइल के दौरान मैंने काफी सारा डिस्कशन यहाँ पे लिखा, यही बात मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, वही चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए कैसा है, स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स तो बहुत सारी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया कि जब भी हम यूजर क्रिएट कर रहे हैं, यूजर को लाइसेंस देना है, साथ में प्रोफाइल। लाइसेंस की कॉपी नहीं बन सकती। लाइसेंस में ऐसा कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड लाइसेंस, कस्टम लाइसेंस, ऐसा कुछ नहीं। लाइसेंस बस लाइसेंस है। लाइसेंस को क्लोन नहीं कर सकता। लाइसेंस को मैं क्लोन नहीं कर सकता। प्रोफाइल्स को क्लोन कर सकता हूँ, मतलब मैं अपने, ये स्टैंडर्ड है, मैं चाहूँ तो इससे मिलती जुलती अपनी एक प्रोफाइल बना सकता हूँ, मतलब वो प्रोफाइल कहलाएगी कस्टम। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है, मैं बताऊंगा आपको, पहले मुझे ये बात कंप्लीट कर दें, ठीक है। अगर मैं भूल गया तो याद दिलाइए। देखिए, लाइसेंस क्लोन नहीं होते, जो है बस वही देना है। तो लाइसेंस ओरिजिनल देना है, ओरिजिनल। प्रोफाइल डुप्लीकेट। क्यों? क्या हम स्टैंडर्ड प्रोफाइल किसी यूजर को दे सकते हैं? आंसर है यस। अभी मॉक लिया था, आंसर मिला था नो, इसीलिए क्वेश्चन उठाया यहाँ। शायद मैंने ही नहीं पढ़ा वो, क्या पता, मेरी गलती होगी। मैंने अभी मॉक में पूछा कि कैन वी गिव द स्टैंडर्ड प्रोफाइल टू अ यूजर, आंसर मिला नो सर। आई वाज शॉक्ड। उसकी वजह शायद ये है कि हमें, हम जो है कस्टम प्रोफाइल बना के देते हैं। चलो ठीक है, हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन आपको साफ साफ बता दें। कैन वी गिव दिस स्टैंडर्ड प्रोफाइल टू यूजर, आंसर है यस। हाँ दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं दे सकते, ठीक है, दे सकते हैं। ये जितनी भी स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स हैं, दिस कैन बी डायरेक्टली गिवन टू द यूजर। आप इस प्रोफाइल को डायरेक्टली यूजर को दे सकते हैं। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप मॉक में गलती ना करो। आप वो 105, ठीक है, ये वो बैच है जो अभी की सबसे आखिरी, अभी 106 को छोड़ देता हूँ, लेकिन आप सबसे आखिरी बैच हो। मतलब मेरे सारे तजुर्बे जितने भी है ना, वो सब आपके ऊपर नहीं छोड़ रहा हूँ। तो सबसे ज्यादा इनपुट जो मिल रहा है ना, वो आप ही लोग को मिल रहा है। तो यकीन मानो इस चीज का, सबसे ज्यादा इनपुट जो मिल रहा है ना, क्योंकि बाकी बैचेस का मॉक भी शुरू हो चुका है, सब शुरू हो चुका है। वो जो जो डिफिकल्टीज हो रही है उनकी, वो सब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सब नोट डाउन कर रहा हूँ, और वो आपको बताते चला। आपसे, आप लोगों से बहुत अपेक्षा है। क्यों बताएगा? हर चीज आपको बताई जा रही है, हर क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। जहां वो लोग मॉक में गलती कर रहे हैं ना, वो भी देखो, कई मरतबा मैंने आपसे डिस्कस किया है कि यार अभी मॉक हुआ। और अक्सर ये मंडे को होता है, क्योंकि सैटरडे संडे मॉक चलते हैं। और मॉक के दौरान जो भी गलतियां करते हैं, वो मैं अगले दिन आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। तो आप वो बैच हो मेरी, जिसको ना सबसे ज्यादा इनपुट, सबसे ज्यादा input। दूसरों की गलतियां भी आपको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ताकि आप वो गलती ना करो। तो आप लोगों से बड़ी अपेक्षा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा मैंने कि जैसे स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स है, इफ आई एम क्रिएटिंग अ यूजर, तो कैन वी असाइन द स्टैंडर्ड प्रोफाइल टू द यूजर? भाई हम यूजर क्रिएट कर रहे हैं, तो एक तो उसी लाइसेंस देना है, उसी चीज उसे प्रोफाइल भी देना है। लाइसेंस तो इसमें कोई डुप्लीकेसी वाला कंसेप्ट नहीं होता है। प्रोफाइल्स में दो प्रोफाइल आती है, स्टैंडर्ड और द कस्टम। तो आप चाहें तो स्टैंडर्ड दें या कस्टम दें। तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ द यूजर कैन वी गिव स्टैंडर्ड प्रोफाइल टू एनी यूजर? आंसर मिला नो, आंसर मिला। आई वाज शॉक, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, स्टैंडर्ड प्रोफाइल कैन बी गिवन टू अ यूजर, बिल्कुल दे सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि स्टैंडर्ड प्रोफाइल यूजर को नहीं दी जा सकती। बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन देना नहीं। इंस्टेड ऑफ गिविंग द स्टैंडर्ड प्रोफाइल, वी शुड क्लोन इट एंड क्रिएट अवर ओन। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो मैं कह रहा हूँ, बार बार एक क्वेश्चन और बनता है, मैं बताने वाला हूँ। स्टैंडर्ड प्रोफाइल दी जा सकती है, लेकिन देना नहीं चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। द स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स कैन नॉट बी रिमूव। पहली बात, आप मतलब हटा नहीं सकते, ठीक है? नहीं, यहाँ पर नहीं, ये नहीं आंसर। हाँ, सी, whenever we create any user,
डोंट असाइन द स्टैंडर्ड प्रोफाइल मत दीजिए, दे सकते हैं लेकिन दीजिए मत। क्यों? सिंस द स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स आर नॉट फुल्ली कस्टमाइज्ड। आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल को ना पूरी तरह से एडिट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एडिट। मैं अभी एक लाइव एग्जांपल बताऊंगा आपको, एक लाइव एग्जांपल अभी बताऊंगा। यू कैन नॉट एडिट दी, एडिट मतलब कस्टमाइज करना है ना। So you cannot edit, you cannot customize any of the standard profile fully. You don't have this right that you can. These standard profiles are not fully customizable. You can customize them. You can edit them up to a certain level, not more than that. But whenever we create any user, we want full control of that. जब भी हम यूजर बनाते हैं ना, तो हमको पूरे कंट्रोल चाहिए, पूरा कंट्रोल। मतलब उसकी प्रोफाइल में हम जो चाहे वो छेड़खानी कर सकते, जो चाहे वो कंट्रोल दे सकें, और जहां जहां चाहे वहां वहां रिस्ट्रिक्शन लगा सकें। ये स्टैंडर्ड प्रोफाइल से नहीं है। आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल से ना एक लेवल तक कस्टमाइज कर सकते हो, उसके आगे नहीं जा सकते। इसीलिए रेकमेंडेड क्या है? रेकमेंडेड क्या है? रेकमेंडेड ये है कि जब भी आप यूजर क्रिएट करें, उसे स्टैंडर्ड प्रोफाइल मत दीजिए। आपको उसे जो भी प्रोफाइल देनी है, आप उसे जो भी प्रोफाइल देना चाहते हैं, उसका एक क्लोन कर लीजिए। उसका एक क्लोन करिए और वो क्लोन वाली कस्टम प्रोफाइल उसे दें। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन बनता है जो बार बार पूछेंगे। 50 to 60% इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 100% बोल रहा हूँ कि आप 100 लोग इंटरव्यू देंगे ना, 100 में से 50 लोग कोई क्वेश्चन पूछा ही जाएगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले आप बात सुन लो, डिस्कशन पूरा नहीं हुआ। कि जब भी हम यूजर क्रिएट करते हैं, तो हमें जो भी प्रोफाइल यूजर को देनी है, फॉर एग्जाम्पल आई एम क्रिएटिंग स्टैंडर्ड, मैं स्टैंडर्ड यूजर क्रिएट करूंगा। स्टैंडर्ड यूजर को कौन सी मतलब सेल्फोर्स लाइसेंस चाहिए है ना, मेरे पास एक लाइसेंस बचा हुआ है, और मैं 3 प्लेटफॉर्म यूजर क्रिएट करूंगा। अब देखिए, जब मैं स्टैंडर्ड यूजर क्रिएट करूँ तो मेरे पास कौन सी प्रोफाइल है? स्टैंडर्ड यूजर के लिए स्टैंडर्ड प्रोफाइल अवेलेबल है। मैं चाहूँ तो ये डायरेक्ट प्रोफाइल उठा के दे सकता हूँ, लेकिन नहीं देना चाहिए। आप इसको क्लोन करेंगे और अपनी एक अलग प्रोफाइल बनाएंगे, जो इसकी कॉपी हो, जो इसकी कॉपी हो, और वो प्रोफाइल आप उस यूजर को देंगे। ठीक है, आपको प्लेटफॉर्म यूजर क्रिएट करने हैं, तो प्लेटफॉर्म यूजर के लिए कौन सी प्रोफाइल होनी चाहिए? स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर की प्रोफाइल होनी चाहिए। इस पे कौन सा लाइसेंस दिया जा सकता है? प्लेटफॉर्म लाइसेंस। मेरे पास 3 लाइसेंस है, यानी मैं इस कैटेगरी के 3 यूजर क्रिएट करूंगा। क्या मैं उनको ये प्लेटफॉर्म, ये वाली प्रोफाइल दूंगा? नहीं, ये स्टैंडर्ड प्रोफाइल है। मैं इसे क्लोन करूंगा और अपनी प्रोफाइल बनाऊंगा। अगर मुझे सीधे साधे शब्दों में समझाना है, तो मैं आपसे ये पूछूंगा, अगर मैं फर्स्ट करिए, जस्ट एक एग्जाम्पल, कि किसी वजह से मैं आपके डॉक्यूमेंट्स मांग, आपकी आपके आधार कार्ड, आपकी मार्कशीट मांग रहा हूँ, आपके पीसी मांग रहा हूँ, तो आप क्या मुझे ओरिजिनली पकड़ा दोगे अपने हाथ, या आप उसकी एक जेरोक्स कॉपी निकालोगे और वो जेरोक्स कॉपी, फोटो कॉपी आप मेरे को दोगे? क्या बेटर है इसमें? फोटो कॉपी देना। क्योंकि देखिए, अगर आपके ओरिजिनल पे मेरे हाथ से कुछ गड़बड़ हो गई, मैंने उसको फाड़ दिया, मैंने उसको कुछ लिख दिया, मैंने घुमा दिया, अब क्या करूँ? कितनी बड़ी मुसीबत है ना। तो हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, उसकी एक फोटो कॉपी क्रिएट करेंगे और वो फोटो कॉपी देंगे। यही चीज है आपकी प्रोफाइल के साथ। प्रोफाइल फुल्ली कस्टमाइजेबल नहीं होती है। अगर हम किसी यूजर को क्रिएट कर रहे हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो हमारे पूरा कंट्रोल होना चाहिए उसकी प्रोफाइल के ऊपर, उसकी एक्टिविटीज के ऊपर, और क्या देना क्या नहीं देना, इस पर भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए। ये आपको स्टैंडर्ड प्रोफाइल नहीं दे सकते। यूजर क्रिएशन पे प्रोफाइल तो देना है, ये हमारी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि हमने जाना इस चीज को काफी पहले से, कि जब भी हम यूजर क्रिएट करते हैं, 3 चीजें देना जरूरी, लाइसेंस देना जरूरी है, प्रोफाइल। लेकिन अगर आप उसे गलती से स्टैंडर्ड प्रोफाइल दे दोगे ना, तो अब आप कुछ हद तक ही आप उस पर कंट्रोल कर पाओगे, बाकी चीजें आपके कंट्रोल के बाहर रहेगी। इसीलिए जब भी यूजर क्रिएट किया जाता है, जब भी यूजर क्रिएट किया जाता है, और जब बारी आती है प्रोफाइल देने की, कभी भी स्टैंडर्ड प्रोफाइल ना दे। बेटर स्टैंडर्ड को क्लोन करें, स्टैंडर्ड को क्लोन करें और क्लोन करके कस्टम प्रोफाइल बनाएं और कस्टम प्रोफाइल यूजर को दी जाए। ठीक है, ये है इस चीज का, हमें ये पूरा स्टोरी है कि जब भी हम यूजर क्रिएट करें, प्रोफाइल्स देना मैंडेटरी है। प्रोफाइल्स देना मैंडेटरी है, बिकॉज विदाउट असाइनिंग अ प्रोफाइल यू कैन नॉट क्रिएट अ यूजर। लेकिन क्या हमें स्टैंडर्ड प्रोफाइल ही दे देनी चाहिए? नहीं, हमें थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, 1-2 स्टेप आगे जाके सोचना चाहिए कि देखिए, अगर मैं स्टैंडर्ड प्रोफाइल दे दूंगा, दे सकता हूँ, यूजर क्रिएट भी हो जाएगा, लेकिन उस यूजर पे मेरा कंट्रोल 50-50 रहेगा। अगर वो मनमानी करता है तो मैं क्या करूँ? कुछ चीजें ऐसी जो मेरे कंट्रोल से बियॉन्ड है, नहीं कर सकता, बिकॉज उसके पास स्टैंडर्ड प्रोफाइल। तो हम चाहते हैं कि जिस यूजर को हम क्रिएट करें, उसकी उसकी प्रोफाइल पे हमारा पूरा कंट्रोल हो। इसीलिए हम स्टैंडर्ड प्रोफाइल को क्लोन करेंगे
और क्लोन करके कस्टम प्रोफाइल बनाएंगे और कस्टम प्रोफाइल उस यूजर को लगा। ये था पहला डिस्कशन। अब इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहूँ, ठीक है, क्या है ये कंट्रोल, क्या है ये control? आइए देखिए। देखिए हम एक यूजर है, जैसे सारे यूजर्स हैं हम भी एक यूजर है। क्या नाम है हमारा, हमारा नाम है ट्रेनिंग माई सेल्सफोर्स 105। हमारी प्रोफाइल कौन सी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ये स्टैंडर्ड प्रोफाइल, ये एक स्टैंडर्ड प्रोफाइल, ठीक है। ये कैसी प्रोफाइल है, स्टैंडर्ड। अब आपको एक मैं बात बताऊँ, मैं आपको आगे चल के डेटा लोडर पढ़ाने वाला हूँ। डेटा लोडर में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। आइए मैं एक एग्जांपल सेटअप करना चाहता था, देखिए क्या कंट्रोल में है और क्या कंट्रोल। डेटा लोडर में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, हार्ड डिलीट। हार्ड डिलीट एक ऑप्शन है। हार्ड डिलीट मतलब क्या होता है, जब आप रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर देते हो ना, दिस इज कॉल्ड एज हार्ड डिलीट। आप ये भी जानते हैं कि सेल्सफोर्स में रिसाइकल बिन कहाँ होती है। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप वो जो मेरे फ्रेंड जैसा हाल है आपका भी, कि रिसाइकल बिन कहाँ होती है उसको पता नहीं था। तो रिसाइकल बिन इज अ कंपोनेंट ऑफ साइड बार। साइड बार एक्सपांड करेंगे, रिसाइकल बिन मिल जाएगा। तो रिसाइकल बिन में जब कुछ चीज है तो उसको बोलते हैं डिलीट किया। डिलीट किया तो कहाँ पहुंच गया, रिसाइकल बिन में। और रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिया तो हार्ड डिलीट। तो यहाँ पर एक हार्ड डिलीट का डायरेक्ट ऑप्शन होता है। अगर आप हार्ड डिलीट करते हैं किसी भी रिकॉर्ड को, किसी भी ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को, तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाता, इंस्टेड वो कहीं तो भी चला जाता है, बाहर सीधा सीधा बाहर चला जाता है। मतलब वो सेल्सफोर्स ऑफ से डिलीट हो जाता है, अब उसको रिकवर नहीं किया जा सकता। तो जब भी हम ये हार्ड डिलीट परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, जब भी हम हार्ड डिलीट परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमारे को दो परमिशन लगती है। ये मैं बताऊंगा आपको कौन सी दो परमिशन, ठीक है। whenever we need to perform the hard delete we require two permissions, हमें दो परमिशन चाहिए। बल्क एपीआई, हार्ड डिलीट, ऑथर अपेक्स, ये दो परमिशन चाहिए। अगर मैं ये पर्टिकुलर यूजर लॉगिन करके हार्ड डिलीट करना चाहता है तो उसको दो परमिशन चाहिए। ऑथर अपेक्स की तो दिख रही है मुझे, बल्क एपीआई हार्ड डिलीट नहीं है इसको। नहीं है तो चलो मैं एडिट करता हूँ, नहीं दिख रही है तो मैं एडिट करता हूँ। काफी ऊपर जाना पड़ेगा, एडिट पे, ठीक है, चलिए एडिट पे चलते हैं। दिख रही काफी सारी चीजें दिख रही है, ओके चलो फिर से देखते हैं। बल्क एपीआई हार्ड डिलीट की परमिशन पे चलते हैं। यहाँ आ गया, दिख रहा है, मैं डबल क्लिक में क्लिक पे क्लिक क्लिक पे खींचे जा रहा हूँ। कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें कस्टमाइजेबल हैं, कुछ चीजें कस्टमाइजेबल नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोफाइल है। इस स्टैंडर्ड प्रोफाइल पे मैं ये परमिशन इनेबल नहीं कर सकता। और ऐसी बहुत सारी चीजें, मैनेज प्रॉम्प्ट्स ये नहीं कर सकता। ये सब बहुत सारी परमिशन है, देखिए ये क्या है, दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन। तो कहीं मैं एक्सेस दे सकता हूँ, कहीं नहीं दे सकता। ये सारी परमिशन जो है ना यहाँ पे हिडन है। क्यों हिडन है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड प्रोफाइल, और स्टैंडर्ड प्रोफाइल का कस्टमाइजेशन कुछ लेवल तक हो सकता है। इसके आगे ऑब्जेक्ट लेवल पे, अकाउंट पर आप क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और ये सारी चीजें एडिटेबल है, ये सब मैं सिखाने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए कस्टम प्रोफाइल नहीं। तो स्टैंडर्ड प्रोफाइल कुछ लेवल तक ही एक्सेस, कुछ लेवल तक ही, जैसे यहाँ पर मैं ये कर सकता हूँ, राइट, ये कर सकता हूँ। कुछ लेवल तक ही एडिट होती है, कुछ लेवल तक ही एडिट होती है, कुछ चीजें एडिट होती हैं, बहुत सारी चीजें एडिट होती ही नहीं। क्यों नहीं होती? ये स्टैंडर्ड, ये कस्टम प्रोफाइल नहीं है, देखिए ये कस्टम प्रोफाइल नहीं है। यहीं पे समझ में आ रहा है, कस्टम का चेकबॉक्स अनचेक्ड है। आप समझ गए कि ये अनचेक्ड है, मतलब ये कौन सी प्रोफाइल है, ये स्टैंडर्ड। तो अगर मैं ये प्रोफाइल दे दूं यूजर को, कल चल के वो बोले यार मैं तो हार्ड डिलीट करना है मुझको डेटा लोडर से, और क्या परमिशन का इशू आ रहा है, आप मेरे को परमिशन दीजिए, तो आपकी बैंड बच गई, बच गई आपकी बैंड। आपने सेल्सफोर्स का यूजर बना दिया, खुशी खुशी एडमिन बना दिया उसको। आप सोचे वाह ये तो एडमिन है तो जो चाहे कर ले, आपने उसको उठाई, उसको एक स्टैंडर्ड प्रोफाइल दे दी, कौन सी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की। आप बहुत खुश हो गए। उसने फिर डेटा लोडर ओपन किया, डेटा लोडर ओपन करने के बाद में उसने हार्ड डिलीट बोला, हार्ड डिलीट करना है। हार्ड डिलीट को जैसे ही उसने ऑप्शन मांगा, यहाँ पर उसको एरर आ गया, यू शुड हैव बल्क एपीआई हार्ड डिलीट परमिशन। फिर वो आपको मेल डालेगा कि आप मुझे वो परमिशन इनेबल करो। आप परमिशन इनेबल करने की बारी आई आपकी, आप गए परमिशन इनेबल करने, आपको पता चला कि एडिट ही नहीं होती। अब क्या करोगे? इसीलिए, इसीलिए स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स यूजर्स को नहीं दी जाती, और ये कोई नहीं बताता है, ये कोई नहीं बताता। जब हमने भी ट्रेनिंग कर दी ना, हमको बोला गया था स्टैंडर्ड प्रोफाइल दो,
हमको थोड़ी ना पता था ये हर्डल्स आएंगे लाइफ में आगे चल के। ये आए जब हर्डल्स में तब पता चला, और एक नया ही ज्ञान की बात पता चली। पूरी पूरी की पूरी से यानी फिजिक्स ही गलत होगी कि किसी भी यूजर को स्टैंडर्ड प्रोफाइल नहीं देना। यूजर क्रिएशन का पहला रूल ये, प्रोफाइल तो देनी है, मैंडेटरी है। लाइसेंस मैंडेटरी है, रूल्स मैंडेटरी नहीं है। लाइसेंस में कुछ छेड़खानी नहीं हो सकती, प्रोफाइल्स स्टैंडर्ड कभी नहीं। ये कोई नहीं बताता, ये सच में कोई नहीं बताता। क्योंकि ये कौन बताएगा? भाई जिसने काम किया, जिसको आइडिया है इन सब चीजों का, जिसने ये हर्डल्स फेस करे, उसी को ये चीज पता है कि अगर स्टैंडर्ड दे दोगे ना तो फंसोगे, कभी ना कभी तो बहुत बुरा फंसोगे। जब वो यूजर कुछ एडिशनल परमिशन डिमांड करेगा, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा, तुम इनेबल ही नहीं कर सकते, इसीलिए स्टैंडर्ड फाइल्स नहीं थी। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल साफ समझाया है। इसमें मुझे लगता नहीं कि कुछ गुंजाइश बची है, बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ समझाया आपको। ठीक है, तो आप इसके ऊपर कितनी भी बहस कर लेना इंटरव्यू, कुछ नहीं हुआ ना तो ये हार्ड डिलीट वाला एग्जाम्पल देना। सर बोलना हार्ड डिलीट, बल्क एपीआई हार्ड डिलीट परमिशन इनेबल करना है मेरे को, डेटा लोडर से यूजर डिमांड कर रहा है कि उसको हार्ड डिलीट करने का है, कौन सी परमिशन चाहिए? बल्क एपीआई हार्ड डिलीट परमिशन चाहिए। स्टैंडर्ड प्रोफाइल दे, कैसे इनेबल करो, कैसे इनेबल करो? नहीं कर सकते। और यही अगर कस्टम प्रोफाइल होती ना तो ये सब कुछ आपके हाथ में होता, पता है। ये मैं दिखाऊंगा आपको, ये सब दिखाने वाला हूँ, ये सब दिखाने वाला हूँ। स्टैंडर्ड प्रोफाइल में एक एक चेक बॉक्स अपने हाथ में रहेगा। ये बल्क एपीआई हार्ड डिलीट अभी कुछ नहीं कर सकते, वहां कर सकते। तो ये ऐसा मुद्दा है जिसपे अपन जितनी देर चाहे ना उतनी देर बहस कर सकते हैं। और आखिरी में अपनी जीत होगी। क्यों? क्योंकि ये एक ही एग्जाम्पल पुटअप कर दो, चलो बोलना ये परमिशन निकाल के बता दो, नहीं होता। ऐसी और ऐसी बहुत सारी। ठीक है, ये एक ऐसी बात है जो जनरली कोई नहीं बताता, ये तो वही बता सकता है आपको जिसने या तो ये प्रॉब्लम फेस किया है, जिसको इस चीज की मालूम है। ठीक है, तो ये यूजर क्रिएशन पे हम जा रहे हैं। अब आप जान लो कि आपको स्टैंडर्ड प्रोफाइल से कोई लेना देना नहीं है। आप हर बार स्टैंडर्ड प्रोफाइल क्लोन करके अपनी कस्टम प्रोफाइल बनाओगे, और वो प्रोफाइल आप यूजर को दोगे ताकि उसको कल्चर के कुछ भी रिक्वायर्ड है तो उसको कुछ चीजें दी जा सके, कुछ चीजें उसके हटाई जा सके। उसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल। ये तभी पॉसिबल है जब प्रोफाइल कस्टम। अब एक आखिरी क्वेश्चन, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाए, जरूर पूछा। इफ आई वांटेड टू क्रिएट अ कस्टम प्रोफाइल, क्वेश्चन सुन लो, ये नहीं पता लिखा है कि नहीं पता। Can we create a custom profile without creating the existing, without cloning the existing standard profile? अगर मैं एक नया कस्टम प्रोफाइल बनाना चाहता हूँ, एक नई कस्टम प्रोफाइल बनाना चाहता हूँ, एक नई प्रोफाइल बनाना चाहता हूँ, क्या मैं इन स्टैंडर्ड प्रोफाइल को बिना क्लोन किए अपनी कुछ अलग सी प्रोफाइल बना सकता हूँ? कैन आई क्रिएट अ कस्टम प्रोफाइल विदाउट क्लोनिंग अ स्टैंडर्ड प्रोफाइल? क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो मेरे भाई। कैन आई क्रिएट अ कस्टम प्रोफाइल, एक कस्टम प्रोफाइल क्रिएट करना है, कैन आई क्रिएट अ कस्टम प्रोफाइल विदाउट क्लोनिंग द स्टैंडर्ड प्रोफाइल? आंसर है नो, नो, नेवर। whenever you want to create a custom profile, the custom profile, आंसर भी दे रहा हूँ, बस जो इंटरव्यू में बोलना है वही बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ। तो आपको कुछ अलग से बोलने की जरूरत नहीं, बस जो मैं सेंटेंस बोलता हूँ ना वही बोल दिया करो यार। ठीक है, वैसे भी सेंटेंस ग्रामेटिकली सही रहते हैं। तो whenever we want to create a custom profile, the custom profiles can only be created by cloning the standard profile. There is no another way to create your custom profile without cloning the standard. There is no way, no way, no way. See, लाइव एग्जाम्पल, न्यू प्रोफाइल, वैसे मैं सिखा रहा हूँ सब कुछ। जब भी आप कोई भी प्रोफाइल बनाना चाहते हो, एग्जिस्टिंग प्रोफाइल मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। लाल रंग की लाइट है यहाँ, नहीं ये लाल रंग की लाइन है यहाँ, लाइट लाइट। विदाउट क्लोनिंग, कोई ना कोई स्टैंडर्ड प्रोफाइल को क्लोन करना पड़ेगा बॉस। ये सारी स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स हैं, इसको बिना क्लोन किए आप अपनी प्रोफाइल बना ही नहीं सकते, बना ही नहीं सकते। आप जो भी प्रोफाइल लोगे ना उसके हिसाब से लाइसेंस अपने आप चेंज हो जाता है। देखो, अगर मैंने स्टैंडर्ड लिया, यहाँ पर आ गया सेल्स। अगर मैंने प्लेटफॉर्म लिया, यहाँ पर आ गया प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये समझ लो, बिना बिना स्टैंडर्ड प्रोफाइल को क्लोन किए आप अपनी कस्टम प्रोफाइल बना ही नहीं सकते। तो आंसर क्या है? नो। आंसर क्या है? नो। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कैन आई क्रिएट, कैन बी अलॉट स्टैंडर्ड प्रोफाइल, कैन बी अलॉट स्टैंडर्ड प्रोफाइल, कैन बी अलॉट स्टैंडर्ड प्रोफाइल टू यूजर, आंसर है यस। आंसर क्या है?
यस। कैन वी अलॉट स्टैंडर्ड प्रोफाइल टू यूजर? आंसर यस। अगर मैं पूछूं कि इफ इट इज वेदर इट इज रिकमेंडेड और नॉट, ऐसा करना चाहिए या नहीं, तब आप मुझे पूरा जस्टिफिकेशन उड़ेल दो मेरे ऊपर कि नहीं, दिस इज नॉट रिकमेंडेड। यस, ऑल्दो यू कैन गिव द स्टैंडर्ड प्रोफाइल टू अ कस्टम यूजर, आप दे सकते हो, बट इट इज नॉट recommended. Why it is not recommended? Because if you give the standard profile to a user, see the standard profiles are not fully customizable. पूरा एडिटेबल नहीं होता है बॉस, कुछ चीजें एडिट होती हैं, कुछ चीजें नहीं होती हैं। So how could I allot and how could I dismiss some of the you know profiles permissions from them? अगर मेरे पास पूरा कंट्रोल ही नहीं है तो मैं कैसे कंट्रोल करूँ? And that is why we shouldn't give the standard profile to any custom user. नहीं करना चाहिए। So what is your recommendation? My recommendation is that you should clone a standard profile and create your own custom profile, then give that custom profile to the user, भैया उसको वो profile। फिर अगर वो आपसे पूछता है कि अच्छा आप ये बताओ, कस्टम प्रोफाइल तो आप बनाने की बात कर रहे हो, क्या मैं विदाउट क्लोनिंग नहीं बना सकता? आंसर है नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। यू कैन नॉट क्रिएट अ कस्टम प्रोफाइल विदाउट क्लोनिंग एन एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड प्रोफाइल, बिकॉज ये इंटरफेस ही क्लियर कर देता है आपको यहाँ पे। आप कैसे बनाओगे ये प्रोफाइल जब तक आप यहाँ से कोई प्रोफाइल सिलेक्ट ना करो? बराबर है, इसीलिए तो whenever we create any custom profile we need to select the standard profile। कोई तो भी स्टैंडर्ड प्रोफाइल का क्लोन बनाना ही पड़ेगा। अरे जेरोक्स करने जा रहे हो डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट ही नहीं दोगे तो काय का जेरोक्स मिलेगा भाई? पहले वो बोलेगा यार कुछ तो दे मशीन में डालने को, ओरिजिनल कुछ तो दे। वही चीज है ये, है ना? तो भूलना मत इन सब, बहुत अच्छे से समझा दिया तुम। अब अपन कस्टम प्रोफाइल की तरफ चलेंगे, लेकिन आज नहीं चलेगा, थोड़ा सा मैंने जल्दी से ले लिया क्योंकि मुझे वही जाना है। Today I'm going to end up right here। कल हम यहाँ से शुरू कस्टम प्रोफाइल्स कैसे क्रिएट करना, लाइसेंस, कल इसके आगे। ठीक है, आज यहाँ पे एंड करता हूँ। आप कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, ऑफकोर्स मैं